শুভ সন্ধ্যা। নমস্কার। অবসর বরিষ্ঠ পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব, জগৎ জননী শ্রী শ্রী মা ও বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে জানাই আভূমি শতকোটি প্রণাম। শারদায় নারী জাগরণ আয়োজিত আজকের সান্ধ্যকালীন দেবত্ব সমাবেশে উপস্থিত সকল ভক্তমণ্ডলীকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম ও নমস্কার। উপস্থিত পূজনীয় মহারাজজিকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা, প্রণাম ও সুস্বাগত। আজ একটি পূর্ণ দিন। আজ ঠাকুরের পার্ষদ শ্রী পরম পূজনীয় শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দজির শুভ আবির্ভাব তিথি। তাঁকেও জানাই আমাদের বিনম্র প্রণাম ও শ্রদ্ধা। এখন শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে আজকের দেবত্ব সমাবেশের শুভ সূচনা করবেন সিস্টার ঋষিকা কুণ্ডু। শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রীমা ও স্বামীজি মহারাজের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে শুরু করছি শান্তি মন্ত্র। ওম শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরি ওম। সহনা ভবতু সহনো সহ বীর্যং करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम ॐ शान्ति 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 शान्तिः। हरिः ओम। ओम्। मित्रः संकरुणः तन्नो तन्नो भवत्वर्यमा। भवत्वर्यमा इन्द्रो तन्नो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे ब्रह्मणे वायो नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षामि ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि वदिष्यामि मामवतु मामवतु भक्तारमवतु भक्तारमवतु भवतु अवतु माम् अवतु अवतु भक्तारम्। ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्तिः। हरि हरिः ओम्। ओम्। असतो मा सद्गमय नमः सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय सोमामृतं सोमामृतं गमय। ॐ शान्ति 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 शान्तिः। शान्तिः। हरि हरिः ओम्। ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ॐ शान्ति शान्तिः। हरि हरिः ओम्। ओम्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। জয় ঠাকুর, জয় মা, জয় স্বামীজি মহারাজ। মহারাজ আমার প্রণাম নেবেন। এখন দিব্যত্রয়ীর প্রণাম মন্ত্র পাঠ করবেন সিস্টার পূজা বাঁকুড়া। ॐ स्थापकाय च धर्मस्व सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते रामकृष्णाय ते नमः। नमः। ॐ श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते
रामकृष्णाय नमो नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराचार्य विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। জয় ঠাকুর, জয় মা, জয় স্বামীজি মহারাজ। আমার প্রণাম নেবেন মহারাজ। থ্যাংক ইউ। প্রণাম নিয়ে নিল। তারপরে আজকে দেবত্ব সমাবেশের অঙ্গনে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন পরম পূজ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী করুণাময়ানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ সোসাইটি, বিষ্ণুপুর, জামশেদপুর। পূজনীয় মহারাজজি 1996-এ শ্রী শ্রী দুর্গা মহাষ্টমী তিথিতে ত্যাগ ও সেবাব্রতে যুক্ত হন। অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলার মুম্মিডিফারম এর সাইক্লোনের সময় প্রাথমিকভাবে এবং পরে 2 বছর তিনি ত্রাণ ও সেবা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। 1998-2000 রামকৃষ্ণ মিশন চণ্ডীগড় রাজমন্ডির কেন্দ্রে সেবা কার্যে যুক্ত ছিলেন। 2000-2002 বেলুর মঠ ট্রেনিং সেন্টারে এই 2 বছর তিনি সেবা কাজে যুক্ত ছিলেন। 2002-2007 আন্দামান পোর্ট ব্লেয়ার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সেবা কাজে যুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে 2006-এ তিনি দীক্ষা লাভ করেন। 2007-2010 কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কাজে সেবাব্রতে যুক্ত ছিলেন এবং 2011 থেকে অদ্যাবধি রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে তিনি সেবা কাজে যুক্ত আছেন। আমরা ধন্য, আমরা কৃতার্থ। পূজনীয় মহারাজজিকে শারদায় নারী জাগরণের পক্ষ থেকে জানাই আবারও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। তার ব্যস্ত ঈশ্বর সাধনার জীবন থেকে আমাদের কৃপায় করে কিছু সময় দিয়েছেন। আজ তিনি ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের কথামৃত থেকে দ্বিতীয়বার শ্রীমঠ মিলনের সেখান থেকে আমাদের সমৃদ্ধ করবেন। আমরা মহারাজজিকে অনুরোধ জানাই তিনি আমাদেরকে তার বক্তব্য দিয়ে সমৃদ্ধ করুন। আমরা মনন ও স্মরণ করব এবং পরবর্তী পর্যায়ে মহারাজজি আমাদের কাছে জানতে চাইবেন আমরা শারদায় নারী জাগরণ অর্থাৎ এই সংঘে যুক্ত থেকে এতদিনে জীবনে কি পেয়েছি, কি শিখেছি। আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কিছুটা আত্মসমীক্ষার ভঙ্গিতে আমরা একে একে নিজেদের উপলব্ধির কথা মহারাজজির কাছে নিবেদন করব। মহারাজজি, আপনাকে সবিনয় অনুরোধ জানাই আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করতে পারেন। জয় ঠাকুর, জয় মা। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये
सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यात् विमुच्येत्। हरिः ओम्। ॐ तव कथामृतं तत्त्वजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 1। श्री श्री माँ का द्वितीय दर्शन। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। द्वितीय दर्शन का प्रसंग। सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण देव उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। तब भी थोड़ी ठंडी थी, इसलिए वे शरीर पर गर्म किनारीदार शाल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो? अच्छा, यहाँ बैठो। यह वार्तालाप श्री रामकृष्ण देव के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। नाई आया हुआ था। श्री रामकृष्ण देव उसी बरामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। शरीर पर शाल थी, पैर में जूतियां, साहस से बदन थे। बात करते समय कुछ तुतलाते थे। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे कृपया जिस घटना का जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो अपने मानस पटल पे उसको देखने का प्रयास करें कि कैसे ठाकुर दक्षिणेश्वर में बैठे हुए हैं, मास्टर महाशय आए हैं और वे उनके साथ बातें कर रहे हैं और उनके साथ हम सभी लोग भी वहाँ विद्यमान हैं। हम अपने आप को ऐसा सोच करके ऐसी भावना करें। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से, क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर जी, कलकत्ते में। श्री रामकृष्ण देव, यहाँ कहाँ आए हो? मास्टर, यहाँ बराह नगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ, ईशान कविराज के यहाँ। श्री रामकृष्ण देव, ओहो, ईशान के यहाँ? श्री केशव चंद्र सेन के लिए श्री रामकृष्ण देव का जगत माता के पास रोना। श्री रामकृष्ण देव, क्यों जी, केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था। मास्टर, जी हाँ, मैंने भी सुना था कि बीमार है, पर अब शायद अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण देव, मैंने तो केशव के लिए माँ के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उचट जाती थी तब माँ के पास रोता और कहता था, माँ केशव की बीमारी अच्छी कर दे। केशव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किसके साथ करूंगा? इसीलिए इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आया था? सुना हुआ लेक्चर देता है मुझे। केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था। कुक साहब भी साथ था। मास्टर, जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना। उनके विषय में ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता। गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। श्री रामकृष्ण देव, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा, कामकाज कुछ है नहीं, कहता है मैं यहाँ रहूंगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है, कच्चे बच्चे कई हैं। मैंने खूब डांटा, भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देख रेख उनका पालन पोष तुम न करोगे तो क्या तुम्हारा कोई गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुर के यहाँ रखाए हो, उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और कामकाज खोज लेने को कहा, तब यहाँ से गया। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मास्टर का तिरस्कार तथा उनका अहंकार चूर्ण करना। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण देव चौंक कर, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण देव के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठे रहे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण देव फिर से पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा, डरते हुए बोले, जी हाँ, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए?
इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव सस्नेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब मैं किसी के कपाल, आंखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति? ज्ञान क्या है? मास्टर जी, अच्छी है पर अज्ञान है। श्री रामकृष्ण देव अप्रसन्न होकर, और तुम ज्ञानी हो? मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम भी दूर हुआ कि जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण देव की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। मूर्ति पूजा। श्री रामकृष्ण देव, अच्छा, तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार है, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? मास्टर, निराकार मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण देव, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से ही काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। दोनों सत्य हैं यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया है, इसीलिए वे तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर, अच्छा, वे साकार है या विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे है नहीं। श्री रामकृष्ण देव, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति। यह बात मास्टर न समझ सके। उन्होंने कहा, अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। लेक्चर तथा श्री रामकृष्ण देव। श्री रामकृष्ण देव अप्रसन्न होकर, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं। अजी, समझाने वाले तुम हो कौन? जिनका संसार है वे समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए और यह उपाय वे न करेंगे? अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा तो उन्हीं की ही हो रही है, वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसलिए तुम्हारा सिर क्यों थमक रहा है? तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह तो ठीक ही है, वह ठीक ही तो है। मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया या मुझमें उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितने लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दें? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही है। श्री रामकृष्ण देव के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। श्री रामकृष्ण देव, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते हो। यदि मिट्टी की ही हो तो उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सहे होता है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है, समझे? मास्टर, जी हाँ। संसार अर्णव घोरे यह कर्णधार स्वरूप कह, नमोस्तु राम कृष्णाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति का उपाय। मास्टर, विनीत भाव से, ईश्वर में मन किस तरह लगे?
श्री राम कृष्ण देव। सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। ईश्वर में दिन रात विषय के भीतर, संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधे को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सदा सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। मास्टर विनीत भाव से, संसार में किस तरह रहना चाहिए? गृहस्थ तथा संसार, उपाय निर्जन में साधना। श्री रामकृष्ण देव। सब काम करना चाहिए, परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता, स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है। मेरा मुन्ना, मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर, जहां उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो, पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे, और यहाँ तक फंस जाओगे कि फिर इनके छुड़ाना कठिन होगा। रोग, शोक, तापादि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे, आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या? संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही सत्य है। रुपए से क्या मिलता है? रोटी, दाल, कपड़े, रहने की जगह, बस यहीं तक। रुपए से ईश्वर नहीं मिलते, तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी को विचार कहते हैं, समझे मास्टर? जी हाँ, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री राम कृष्ण देव। हाँ, वस्तु विचार। देखो, रुपए में ही क्या है और सुंदरी की देह में ही क्या है? विचार करो, सुंदरी की देह में केवल हाड़ मांस चर्बी मलमूत्र, यही सब। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? ईश्वर दर्शन के उपाय। मास्टर, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री राम कृष्ण देव। हाँ, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। मास्टर, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री राम कृष्ण देव। खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, और ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। यह कहकर श्री राम कृष्ण देव गाने लगे। भावार्थ। मन, तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देखें वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती हैं। यदि माँ काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो
जवा पुष्प और बिल्व पत्र लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर माँ के श्री चरणों में पुष्पांजलि दे। व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह तीन प्रकार की चाहत एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्यूं म्यूं करके बस माँ को ही पुकारता भर है। उसकी माँ जहां उसे रखती है वहीं वह रहता है, कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, तो कभी बिछौने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो वह बस म्यूं म्यूं करता है और कुछ नहीं जानता। माँ चाहे जहां रहे म्यूं म्यूं सुनकर आ जाती हैं। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वे ईशावतारम परमेशमीड्यम तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि। वचनामृत का पाठ हुआ। ये आप लोगों की संस्था जो शारदाई नारी जागरण, उसमें ये जो आज का दिन है सोमवार, प्रत्येक सोमवार डिविनिटी के अंतर्गत ये व्याख्यान होता है। तो डिविनिटी यानी दिव्यत्व। स्वामी जी ने इसकी परिभाषा करते हुए राजयोग में कहा कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके अपने इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान पद्धतियां, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण व्यवरे मात्र हैं। स्वामी जी की बात है। शास्त्रों में कहा जाता है कि हम लोगों को जैसे जीवन मिला है तो जीवन में बहुत सारे क्या हैं, दोष हैं। हम लोगों के दोष में है, इसलिए हमारा ब्रह्मत्व या डिविनिटी जिसको हम कहते हैं दिव्यत्व, वो अभी प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। इसके लिए शास्त्रों में तीन पद्धतियां बताई जाती हैं। कहते हैं क्या, पहला है कि दोषापनयन, यानी जो हमारे दोष हैं उनको दूर करना। फिर क्या आता है कि शास्त्रीय भाषा में है दोषापनयन और गुणाधान। फिर तीसरा है हीनांग पूर्ति। तो दोषापनयन में है कि जैसे मार्बल, जहां उसका जो है खदान है, मार्बल निकाला, अब ठाकुर जी की मरमर की मूर्ति बनाना है तो एक ब्लॉक ले लिया उसका, उस ब्लॉक से जो मरमर अनावश्यक है उसको जो है मूर्तिकार छेनी हथौड़ी के माध्यम से हटा देता है। तो इसको कहते हैं, माने मूर्ति तो उसी पत्थर में ही छिपी हुई थी ना, ठाकुर की मूर्ति, उसको व्यक्त किया। व्यक्त कैसे किया कि उसके ऊपर जो भी अनावश्यक मरमर के टुकड़े हैं उनको जो है मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी या जो भी यंत्र के माध्यम से हटा दिया। तो इसको कहते हैं, और फिर वो टुकड़े हट गए तो मूर्ति अपने आप व्यक्त हो गई, प्रकट हो गई। तो इसको बोलते हैं दोषापनयन, यानी जो ब्लॉक में अनावश्यक पत्थर मूर्ति को छिपा के रखे थे उन पत्थरों को हटा दिया गया, तो उसको दोषापनयन कहते हैं। फिर क्या हुआ, नहीं उसको और भी फाइन करने के लिए उसको पॉलिश किया। पॉलिश करने से मूर्ति और भी उसमें निखार आया, उसमें सुंदरता आई। तो इसको कहते हैं दोषापनयन के बाद गुणाधान। गुणाधान जो पॉलिश करके तरह तरह से उसमें सारे अंगों को व्यक्त कराया मूर्तिकार, तो गुणाधान हुआ। फिर उसके ऊपर मूर्तिकार ने कपड़े पहनाए, चंदन लगाया, फूल माला चढ़ाई, माला पहनाया, तरह तरह से जो श्रृंगार हम लोग करते हैं उसको कहते हैं गुणाधान। गुण का आधान, जो गुण हमारे अंदर नहीं है
उन गुणों को अपने में ले आना, उसका आधान करना, उसको पहनना, उसको ले, तो इसको कहते हैं गुणाधान। फिर हीनांग पूर्ति, मान लो पत्थर के उसमें करते समय कहीं कोई छेद हो गया, कुछ हो गया, तो वो दोष उसके आ गया, वो जो है उसके अंदर हीन अंग हो गया, अंग जो है उसमें कमी आ गई, तो उसको जो है वो लोग तरह तरह से केमिकल के द्वारा उसको भर देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो इसको कहते हैं हीनांग पूर्ति। यानी जो, जैसे मनुष्य के कहीं कोई अंग जो है उसमें हीन है, प्लास्टिक सर्जरी करके तरह तरह से उसको जो है उसको सुंदर बना दिया गया। तो ये शास्त्रीय भाषा में 3 तरह के, इसी तरह से हम लोगों को भी भगवान को अगर अपने जीवन में पाना है, तो हमारे अंदर जो दोष है, जिन दोषों के कारण हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, या अपने अंदर की जो भी दिव्यता है वो प्रकाशित नहीं हो रही है, तो पहले चुन चुन करके उन दोषों को दूर करना होगा। फिर गुणाधान, फिर ऐसे गुणों का जो है आधान करना पड़ेगा जिन गुणों पे हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर रिझते हैं, जो उनको अच्छा लगता है। फिर हीनांग पूर्ति, जो हमारे अंदर जो है हीन हो गया है अंग, उसको जो है उसकी पूर्ति भी करना है। तो ये शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, पहला हुआ दोषापनयन, दूसरा हुआ गुणाधान, तीसरा हुआ हीनांग पूर्ति, हीन अंग की पूर्ति। इसी तरह से हम लोग जो है, ये डिग्निटी की जो क्लास हो रही है, डिग्निटी के अंतर्गत, तो अगर अपने जीवन में दिव्यत्व को लाना है, तो हमें ये जानना होगा कि क्या हमारे जीवन में दोष हैं जिसके कारण हम अपने जीवन में दिव्यत्व को प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर भी तो हाड़ मांस के चाम के ही पुतले बने थे, स्वामी जी भी थे, माँ भी थी, पर उनके जीवन में दिव्यत्व कैसे प्रकाशित हुआ, वो साधना करके कैसे उनको जो है अंदर की कमियों को दूर किया। माँ भी कहती हैं कि मुझे जो है पूर्णिमा की रात, आज तो पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा की रात माँ चंद्रमा की तरफ देख करके प्रार्थना करती थी कि ठाकुर, चंद्रमा में भी दोष है पर हमारे मन में दोष ना रहे। आज पूर्णिमा है ना, कल जो है चंद्रमा भी लगना है आज। থাকবেন। এখন আমাদের শ্রদ্ধেয়া দিদি ডক্টর মিনা মুখার্জি আপনাকে ভোট অফ সেন্স দেবেন। কি দেখবেন? ভোট অফ থ্যাঙ্কস। ঠিক, হ্যাঁ মহারাজ। ফর্মাল ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিতেই হয়, সুতরাং দিয়ে ফেলুন তাড়াতাড়ি, নাহলে ওদের টাইম হ্যাঁ বেশি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, শুভ সন্ধ্যা। দিব্যত্রয়ী শ্রীপাদপদ্মে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করে আজকের দেবত্ব সমাবেশে আমরা কি অতিথি দেখে দেখে বক্তা পড়ছেন? হিসেবে, আপনার না ফটো আসছে না, আপনি কি দেখে দেখে পড়ছেন? ফটো আসুক, দেখি আমরা কি করে পড়ছেন আপনি। এক্ষুনি এটা তো তো দেখলেন। পরীক্ষা না, না এখন তো পরীক্ষা চলছে তো, না এখন দেখে দেখে অতিথি পড়ছেন মনে হচ্ছে। আমরা পেয়েছি হুম। শ্রীমৎ স্বামী করুণাময়ানন্দ না দেখা যাচ্ছে না, শুধু দাঁত, দাঁত গুলো দেখা যাচ্ছে, আপনার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। কেন দেখা যাচ্ছে না? আমি কি করে জানবো আপনার ক্যামেরা কেমন আছে? আপনি দেখে বলুন। হুম, শ্রীমৎ বইতে স্বামী লিখে লিখে পড়ছেন, হ্যাঁ সেই জন্য মুখটা দেখা যাচ্ছে না। করুণাময়ানন্দজিকে পেয়েছি। মহারাজজি আজকের যে আমাদের দেবত্ব সমাবেশে প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যে আপনি বচনামৃত পাঠ করেছেন। তো সেই সম্পর্কে যে সমস্ত কথা আমরা শুনেছি সেগুলো আশা করি প্রত্যেকেই বহুবার পাঠ করেছেন, তবুও মনে রাখবেন। আর ধন্যবাদ জানাবো যে আপনি যখন বিশেষ ভালো লাগলো যে যখন সব বাচ্চারা প্রণাম মন্ত্র বলছিল তখন আপনি নিজে নিজে সেই প্রণাম মন্ত্রগুলো বলছিলেন, এটা আমার বিশেষভাবে ভালো লেগেছে। তাতে তাদের উচ্চারণের শুদ্ধতা মানে বৃদ্ধি পাবে। আর ভালো লেগেছে আপনি এই যে প্রশ্নোত্তর বিভাগটাকে একটু অন্যরকম ভাবে বেশ রসিকতার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করছিলেন, সেটাও একটা নতুন ধরনের মনে হলো আর ভালো লাগলো, গতানুগতিক প্রথার থেকে একটু বাইরে। তো সেজন্য সবাই আশা করি খুব এনজয় করেছে। কেউ করুক না করুক, অন্তত আমি করেছি। আর আজকের আপনার আলোচ্য বিষয়ই তো ছিল যে শারদায় নারী জাগরণে আমাদের এতদিনে কি কি আমরা শিক্ষা লাভ করেছি, কিন্তু যখনই একটু করে প্রশ্নটা ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন
তখন সবাই কনফিউজড হয়ে যাচ্ছিলেন, ইভেন আমিও হয়ে গেছিলাম। যাই হোক, আপনি দেবত্ব সমাবেশে মাঝে মধ্যে এরকম ভাবে আসবেন আর আমাদের সবাইকে একটু করে আমাদের জ্ঞানের প্রসার প্রসার বৃদ্ধি তো হবেই, তার সঙ্গে আমার মনে হয় যে আমরাও সবাই আপনার মতো করে বলতে পারবো, নিজের মতো করে ভাবতে শিখবো। আর আমরা যে জিনিসটা আপনি বলতে চাইছিলেন, বারে বারে পেতে চাইছিলেন উত্তরটা, সেটা হচ্ছে মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসা। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এই কথাটারই মানে অন্তর্নিহিত ভাবটাই আমাদের শারদীয়া নারী জাগরণের, শারদাই নারী জাগরণ, শারদীয়া নয়, শারদাই নারী জাগরণ কে স্তোত্র হ্যায়, এই হ্যায়, মানে এটার নাম ওই জন্যই শারদাই করা হয়েছে। তো এটা শারদীয়া নয়, শারদীয়া তো দুর্গাপূজায় হয়ে যায়, তো সেই না, জন্যই আমি এটার উপরে শারদাই জোর। বলছি। আমি শারদাই বলছিলাম, শারদাই। আচ্ছা, আমার যেন মনে হলো আপনি মানে শারদীয়া। शारदा का माँ, माने माँ হ্যাঁ, शारदा का शारदा का हिंदी में। ही। हाँ हाँ, हाँ, वो लेके शारदाई। भावधारा को लेके हम लोगों को चलना है, ठीक है, यही अच्छा। हम लोगों का मूल मकसद है और इसी चलो। से हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति जो, ज्ञान जो, कर्म जो का बारे में हम लोग उनका जो विचार माने धारा बच्चों में हम तो हम हम लोग तो उनकी पहले से करते ही हैं, चर्चा में भी पेपर हम का चर्चा। प्रश्नोत्तर के लिए हम चाह रहे थे। प्रश्न तो हमने पहले से ही बता दिया था, तो प्रश्न हाँ पहले से ही लीक कर दिया था, माने पेपर आउट हो गया था। पेपर आउट हो गया था तब भी परीक्षा में आप लोग बहुत अच्छा अच्छा मार्क पाए हैं, तो हम सबका मार्क अभी नहीं बताते हैं। पर यह है कि हम यहाँ जो है यही जानना चाह रहे थे कि जीवन में किस कारण से विभिन्न संस्था से हम लोग युक्त होते हैं, उद्देश्य क्या है, और फिर जीवन में कोई परिवर्तन भी हो रहा है कि केवल युक्त होते हैं तरह तरह। युक्त होने के पीछे अलग मनोभाव रहता है, ठीक है, जिसका जैसा मनोभाव रहेगा उसको वैसा फल मिलेगा। पर जीवन में कुछ जो परिवर्तन पॉजिटिव कुछ हो रहा है कि नहीं। एक बार एक एक भक्त ने ही परम पूजनीय श्रीमद स्वामी भूतेश्वरानंद जी महाराज से पूछा था, प्रश्न पूछा था, महाराज हम लोग जो है जो ये सब प्रयास कर रहे हैं, कैसे समझे कि हम सही रास्ता में जा रहे हैं। किस जो भी हम प्रयास कर रहे हैं कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, सही है या गलत है, कैसे समझें। तो महाराज जी ने भागवत के एक श्लोक का उद्धरण करके बताया था। আপনারা হয়তো পড়েছেন, জানেন বাংলাতে এটা স্মৃতি কোথায় বেরিয়েছে এটা। तो महाराज ने कहा कि जैसे मान लो, उन्होंने उदाहरण के साथ समझाया, कहा कि जैसे एक आदमी 5-10 दिन से भूखा है, तो अगर उसके सामने भोजन आता है तो भोजन जो है वो झटपट में खाना चाहता है क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी है। तो उन्होंने कहा था कि भूख लगी है और भोजन नहीं मिलने के कारण उसके शरीर में बेचैनी है, माने वो संतुष्ट नहीं है, तृप्ति उसके अंदर नहीं है, संतुष्टि नहीं है, बहुत बेचैन है और दुर्बल भी है, भूखा तो वही है। तो जैसे ये उसके सामने खाना आता है, एक एक ग्रास करके वो खाना खाता है, भोजन पाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक तृप्ति आती है, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति। तो कहते हैं कि वो उसके अंदर संतुष्टि का भाव होता है, तुष्टि संतुष्ट होता है, पुष्टि वो मजबूत अपने को अनुभव करता है, पुष्ट होता है, खा खा करके एक एक और खाता जाता है, उसके अंदर पुष्टता भी आती जाती है। और क्षुधा निवृत्ति, साथ साथ उसकी भूख भी जो है मिटती जाती है। तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। ऐसा नहीं कि वो तुष्ट हो गया कुछ देर बाद वो पुष्ट होगा फिर उसके बाद तृप्त होगा, ऐसा नहीं है। तो भागवत के एक श्लोक का महाराज ने उदाहरण देके बताया था। ऐसे ही जिसके जीवन हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें ये चीजें तीन साथ घटित होगी कि हम हमारे मन में जो तरह तरह के प्रश्न आते हैं, ईश्वर है या नहीं है, भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, इस तरह से बहुत तरह के प्रश्न रहता है ना, है। फिर क्या होता है कि कभी हमारे मन में कुछ है, कहीं से धक्का खाए हैं, ठोकर लगी है,
एक भक्ति आ जाती है, मरकट वैराग्य आता है। जीवन में सब समय जो है भक्ति, और समझ में आता है कि नहीं, ये संसार, इसमें पूरा मन नहीं दिया जा सकता। जैसे कि अभी हमारे मन में बहुत ज्यादा संसार का अनुराग है, हम सबके मन में है। किसी ने कई सारे स्पीकर आने लगता है, हमको हमारी आवाज ही सुनाई पड़ रही। तो उसमें भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध, जैसे कोई अगर सही सही रास्ते पे जा रहा है तो उसके जीवन में भक्ति आएगी, विरक्ति, जो चीजें भगवान से दूर करती है उन चीजों से मन अपने आप वैराग्यवान होगा, वो विरक्ति आएगी। और भगवत प्रबोध, भगवत प्रबोध माने तरह तरह के हमारे मन में जो संशय होते हैं, प्रश्न आते हैं, तो वो प्रश्न नहीं रहेंगे, भगवत प्रबोध हो जाएगा। भगवत प्रबोध होने का मतलब है कि भगवान है, भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, भगवान होते हैं, तरह तरह के जो आते हैं मन में प्रश्न, वो प्रश्नों का समाधान होगा, एक ही साथ होगा। अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो भक्ति आएगी जीवन में, भक्ति, विरक्ति, और जिन चीजों से हम भगवान से दूर होते हैं उनसे अपने आप वैराग्य आएगा। और तरह तरह के जो हमारे मन में संशय है, तो वो संशय खत्म होगा, भगवत प्रबोध आएगा जीवन में। जैसे भूखे आदमी के सामने खाना रखने से एक एक और खाता है, तो उसके अंदर तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा, निवृत्ति एक साथ होती है। उसी तरह से कोई अगर सच्चाई के रास्ते पे जा रहा है तो उसके जीवन में भक्ति आएगी, विरक्ति आएगी और भगवत प्रबोध। तो आज हम और ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमको इस तरह से बुलाने के लिए और हमारी बकवास सुनने के लिए। हम ठाकुर माँ स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में जो भी कामना हो पूर्ण हो, आप लोग अच्छाई के रास्ते पे बढ़े। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय महावीर जी की जय। जय गंगा माई की जय। जय श्रीमद स्वामी विज्ञानानंद महाराज जी की जय। जय वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। हरि ओम। ঠাকুরমা স্বামীজিকে সঙ্গীত নিবেদন করা হয়। এখন করুন সঙ্গীত নিবেদন নিশ্চয়। করবেন সিস্টার হ্যাঁ, পূরবী বাসু। ঠিক আছে করুন। আমি তো জানি না, আপনারা বলে দেবেন, আমি তো মাঝখানে গড়বড় করতে লাগলাম। শ্রী শ্রী ঠাকুর, পূরবী, শ্রী শ্রী মা স্বামীজি মহারাজের শ্রীচরণে অনন্ত কোটি প্রণাম অগ্রদীপ জানাই। বসু, অগ্রদীপ বসু আপনার নাম না আপনার যে ওনার ছেলের নাম, অগ্রদীপ ছেলের নাম। ছেলের নাম? তো আপনি কোথায়? আপনার তো দেখা যাচ্ছে না। প্রণাম জানাচ্ছেন, আমরা দেখি কি এরকম প্রণাম জানাচ্ছেন। মহারাজ ফোনটা রাখার একটু অসুবিধা আছে, আমি লাস্টে দেখাবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণাম, শতকোটি প্রণাম জানাই। উপস্থিত পূজনীয় মহারাজজির শ্রীচরণে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। উপস্থিত সমস্ত রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীকে প্রণাম জানাই। মায়া আমাদের মানুষ করো, এই মিনতি ও রাঙা পায়ে। মায়া আমাদের মানুষ করো, এই মিনতি ও রাঙা পায়ে। তোমার ছেলে হয়ে যেন দিন কাটে না ধুলো খেলায়। মায়া আমাদের মানুষ করো, এই মিনতি ও রাঙা পায়ে। মিথ্যা যতই মোহন বেশে, মা মা গো মা, মিথ্যা যতই মোহন বেশে,
আসুক এসে আমরা যেন অটল থাকি মা তোমারি চরণ সেবায়। মায় আমাদের মানুষ করো এই মিনতি ও রাঙা পায়ে। তুমি মোদের প্রাণের প্রাণ, তুমি মোদের ধ্যান জ্ঞান, তুমি মোদের প্রাণের প্রাণ, তুমি মোদের ধ্যান জ্ঞান। তোমার তরে গান মা, তোমার তরে গান মা, যেন মোদের জীবন যায়। মায় আমাদের মানুষ করো এই মিনতি ও রাঙা পায়ে। তোমার ছেলে হয়ে যেন মা দিন কাটে না ধুলো খেলায়। মায় আমাদের মানুষ করো এই মিনতি ও রাঙা পায়ে। প্রণাম মহারাজ। মহারাজ জি, প্রণাম।